Welcome students. R.D. Sharma class plus 2 exercise 1.1 question 8 to question number 14. Now question number 8. Question number 8 is prove that every identity relation is reflexive but converse is not necessarily true. This is the question, and we know very well that every identity relation is reflexive, but every reflexive relation is not identity. We know it. We want to show it. The solution: if relation R is identity relation, then A, A must belongs to relation. A, A तो relation में मिलेगा ही. Therefore, relation becomes reflexive also. रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा. नाउ कन्वर्स: इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, देन A, A belongs to relation. A, A belongs to relation, and maybe A, B belongs to relation, right? If only A, A belongs to relation, then it is identity. But if A, A belongs to relation and A, B belongs to relation, then relation is not identity. That means if relation is reflexive, then not necessarily identity. अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा. Now we go for next question. Question number 9. Question number 9. There is a set A given in which we have 1, 2, 3, 4. These elements are there. And the question is that prepare the relations satisfying the following conditions and define on the given set. यानी ये जो सेट आपके पास है, इस सेट के ऊपर रिलेशंस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस अपने को बनाने हैं. ठीक है, एग्जांपल्स बनाने हैं जो इस सेट के ऊपर डिफाइन है. फर्स्ट जो कंडीशन है,
वो है कि जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, दूसरा ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. This is first condition. The relation must be reflexive, transitive, but not symmetric. ऐसा एक रिलेशन अगर अपने को इस पर बनाना है तो मैं अब इसका कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास एक ही तरह का आंसर होगा, आप अलग अलग तरह के बना सकते हैं. जैसे अगर हम लें 1 1 2 2 3 3 4 4 and 1 2, ठीक है. Then this is the relation which is reflexive. You can see 1 1 2 2 3 3 4 4. It is reflexive, not symmetric. 1 2 का अपोजिट 2 1 होगा, वो इसमें नहीं है. और ट्रांजिटिव की कंडीशन को ये फॉलो करता है, आप चेक कर सकते हैं. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कंडीशंस को फॉलो करवाना है और आप अलग अलग तरह के एग्जांपल्स बना सकते हैं. सेकंड में इसने बोला है सिमेट्रिक relation must be symmetric but neither reflexive nor transitive. रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो बट ना ही रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांजिटिव हो, ऐसा एग्जाम्पल अपने को बनाना है. तो एक एग्जाम्पल अगर हम चाहें, इसमें भी कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. मैं ले लूं अगर 4 1 और 1 4. अगर आप इसे देखेंगे तो ये सिर्फ सिमेट्रिक है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है. सिमिलरली यू विल ट्राई योरसेल्फ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इट्स वेरी इजी. नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10. In 10th question we are given a relation R on the set of natural numbers. That means relation is defined from natural to natural, and the relation is x comma y such that 2x plus y is 41, right? And obviously x and y all belongs to natural number, and the required are domain, range. Two things are required. After that you have to check is it reflexive, symmetric or transitive, right? So if you want to write the domain, then you should write the relation in roster form. रिलेशन जो आपका है वो आपके पास रोस्टर फॉर्म में होना चाहिए. अब रोस्टर फॉर्म मींस ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू नेचुरल नंबर से आपको सिलेक्ट करनी है जो इसे सेटिस्फाई करे. इफ यू टेक x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 39, तो इट इज 139, देन 237, देन वी हैव 335, right? 335. After 335, then we will take 31. Okay. If you take 6, then 29. If you take 7, then 27. If you take 8, then 25. If you take 9, with 9 you will take 23. If you take 10, then 22, 21. If you take 11, then you will take 19. If you take 12, right? If you take 12 means 17. And if you take 13, then you will take 17. If you take 13, then 15. If you take 14, you will get 13. If you take 16, 15, then it is 11. If you take 16,
then take 9, right? If you take 17, then you take 7. If you take 18, then you will take 5, right? And if you take 18, that means 19 भी ले सकते हैं. 19 के साथ आ जाएगा 3. If you take 19, after 19, 20 to 20, 40 and 1 आ जाएगा. ये ही पेयर्स हैं जो इसे करेंगे total satisfy. You can see from natural number the pair satisfying this condition 2x plus y is equal to 41. If you put x is equal to 1 तो आपको y 39 लेना पड़ेगा. x is equal to 2 तो आपको y 37 लेना पड़ेगा. yes or no? If you take 3, 2 3 is 6 तो आपको y 35 लेना पड़ेगा. ये सब आपके आंसर्स हैं. That means this is the set builder form of the relation and this is roster form of the relation. ठीक है. Now we want to write the domain. हमें इसका डोमेन लिखना है. ठीक है. डोमेन मीन्स फर्स्ट पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे. 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन. आपको 20 तक जाना है. ठीक है. फिर उसके बाद आपको इसका रेंज लिखना है. रेंज में आप 39 दो कम करते चले जाइए, 37, 35 ऐसे लास्ट तक आप जाएंगे 5, 3, 1 पर जाएंगे. दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज. नाउ फर्स्ट पार्ट यू वांट टू चेक रिफ्लेक्सिव. तो आप देखें इस रिलेशन को चेक करें, इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट. यू वांट टू चेक रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर्स. दैट मींस द ऑर्डर पेयर्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सेम इसमें दिख रहा है कोई. दैट मींस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. देन वी गो फॉर, दिख नहीं रहा था अभी, इसमें देखो कोई भी पेयर है सेम वाला तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. देन वी गो फॉर सेकंड इज व्हाट, सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मींस वी मस्ट हैव वन, सपोज फर्स्ट पेयर 139, इट्स इनवर्स शुड बी देयर 39 1 है ही कहीं नहीं दिख रहा है. कोई भी देखो आप 11 19 का आपको रिवर्स नहीं मिलेगा, 17 7 का रिवर्स नहीं मिलेगा, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक. सिमिलरली इफ यू चेक इट इज नॉट ट्रांजिटिव. ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है. बहुत आसान है. अब अगर 11th में आता तो आप डोमेन रेंज तक तो इसको आराम से कर सकते थे. डेफिनेशन पता हो तो हम वहां पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव भी कर सकते हैं. राइट. दिस इज योर 10th क्वेश्चन. आफ्टर दैट वी हैव 11th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is it true that every relation which is symmetric and transitive is also reflexive? Give reasons. No, it's not necessary. There are many relations which are symmetric and transitive but not reflexive. You should prepare an example yourself. आप खुद बनाएं. आप एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने प्रूव किए हैं, बहुत सारे, जिसमें रिलेशन रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव नहीं है. ये पूछ रहा है कि रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इज इट आल्सो रिफ्लेक्सिव? नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है. आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं. यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ. इतना तो आप करें खुद. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. This is question number 12. An integer m is said to be related to n if m is multiple of n. That means आपका जो रिलेशन है वो है m, n such that m is multiple of n. m is multiple of n. And you want to check this relation on integers. Relation आपको चेक करना है इंटीजर से इंटीजर. राइट. चेक इफ इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. अपना वही सीन है. सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव. अभी रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोला है? m और n नहीं सोचना आपको. m और m कोमा m must satisfy the relation. That means must belongs to the relation. So we will take m as multiple of m. Yes or no?
m तो m का मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, आप कहें 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, 5 इज मल्टीपल ऑफ 5, 6 इज मल्टीपल ऑफ 6, -1 इज मल्टीपल ऑफ -1, 0 इज मल्टीपल ऑफ 0। एवरी इंटीजर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एवरी integer is multiple of itself, right? Then we go for symmetric. This relation is symmetric or not? We know that very well. It is very basic concept. If m is multiple of n, that implies m अगर n का multiple है, ठीक है, तो m को हम क्या लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, यस और नो? इफ n इज मल्टीपल ऑफ m, अगर n जो है वो m का मल्टीपल है, दैट इंप्लाइज n को हम क्या लिख सकते हैं, mx। सो आप देखो खुद, क्या nx और mx बराबर है, यस और नो? नहीं है। Therefore mn belongs to relation but nm does not belongs to relation। अब छोटे से एग्जांपल को भी देख लें। 8 इज मल्टीपल ऑफ 2, उल्टा देखेंगे क्या 2 जो है वो 8 का मल्टीपल है? 8 2 के पाड़े में आता है भाई, सिंपल है। और 2 के 8 के पाड़े में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। देन वी गो फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तब बताइए मेरे को, इफ m इज मल्टीपल ऑफ n, देन m को आप क्या लिख पाएंगे, nx टाइप कुछ भी। इफ n इज मल्टीपल ऑफ q, देन n को आप लिख पाएंगे qx, right? Now you want to check a relation between what? आपने ऐसे देखना है, m n और q आपके पास है, m और n और q। अब आपको ये प्रूव करना है कि m भी q का मल्टीपल है, m इज ए मल्टीपल ऑफ q, राइट? अगर m जो है वो q का मल्टीपल है तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, m इज इक्वल टू qx, मीन्स m इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, ऐसा आपको शो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आगे चलते हैं। अभी अपने पास आ गया था, यहां तक पहुंच गए थे हम। वी हैव m इज इक्वल टू nx एंड n इज इक्वल टू qx, राइट? वी वांट रिलेशन बिटवीन m एंड q, वी डोंट वांट n, सो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, m इज इक्वल टू nx एंड qx इज इक्वल टू n, और इनको डिवाइड करवा लेते हैं। तो डिवाइड करवाएंगे तो आप पाएंगे m डिवाइडेड बाई qx इज इक्वल टू x। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट m इज इक्वल टू qx स्क्वायर, दैट मीन्स m इज q मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, देयरफॉर m इज मल्टीपल ऑफ q। m जो है वो किसका मल्टीपल है, q का। Therefore here m n belongs to relation and q belongs to relation, also m q belongs to relation, therefore this relation is transitive। छोटे से एग्जांपल से समझें, 12 is multiple of 4, राइट? 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, तो 12 इज मल्टीपल ऑफ 2। ऑब्वियसली आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आपको ये ट्रांजिटिव मिलेगा, राइट? सो दिस रिलेशन अपन ने चेक किया, ये आपको रिफ्लेक्सिव मिला, सिमेट्रिक नहीं था, क्योंकि m अगर n का मल्टीपल है, m इज मल्टीपल ऑफ n, तो n जो है वो m का मल्टीपल नहीं हो सकता, ठीक है? ट्रांजिटिव भी मिला। सो देयरफॉर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड transitive। Now come to the 13th question। What is 13th question? 13th question में आपके पास जो सेट है
आपका जो रिलेशन है R1 दैट इज डिफाइन ऑफ सेट ऑफ रियल्स। कई बार ऐसा होता है आपको रियल्स पे सेट डिफाइन मिलेगा तो आप क्या करें, अपने रिलेशन को नाम बदल लें, R1 दे दें, ठीक है। एंड व्हाट इज द रिलेशन R1? दिस इज A, B सच दैट A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B। और आपको A और B की वैल्यू कहाँ से लेनी है? रियल नंबर से लेनी है, वही चेक करना है। वैसे इसमें लिखा है शो दैट नंबर इज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मींस इतना श्योर हो गया क्योंकि अपने को शो करना है बस, रिफ्लेक्सिव है ये, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा अपने को शो करना है। शो करना मीन्स अपने को रीजन लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन, थोड़ा सा इस बारे में अगर बात करें, A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, इसे क्या बोलते हैं? A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B। जब आप इसमें सेम सेम लेंगे, A और A लेंगे तो इक्वल तो आएगा ना। इसने बोला ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन्स बड़ा होगा तो भी रिलेशन में इंक्लूड होगा, और अगर बराबर होगा तो भी रिलेशन में इंक्लूड होगा, ठीक है। सो A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू रियल नंबर। A और A तो मीन्स आप इनको सेम सेम करेंगे तो बराबर तो आएंगे ही। A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयरफॉर A, A बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस दिस इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज R1। तो ये रिलेशन आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव है। फिर उसके बाद आप आते हैं कि रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो आप बताओ मेरे को एक छोटी सी बात, इफ A इज ग्रेटर देन B देन B इज नॉट ग्रेटर देन A। इज इट पॉसिबल? इफ A is greater than B then B is greater than A? Not possible. Means therefore here AB belongs to relation but BA does not belongs to relation। यहाँ AB रिलेशन में मिलेगा लेकिन BA खोजोगे तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप अगर 4-2 देखेंगे रिलेशन में, 4-2 से बड़ा है लेकिन रिलेशन में आपको 2-4 तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि 2 तो 4 से छोटा है, रिलेशन ग्रेटर देन का है, तो कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा, ये नहीं करेगा। मीन्स 4-2 का रिवर्स नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आपके पास आता है ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली बहुत आसान सी चीज है, इफ A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, B is greater than or equal to C. What is that means? A is greater than or equal to C. You can give an example, it's very easy. A is greater than or equal to B, B is greater than or equal to C, then obviously A is greater than or equal to C. Therefore, here AB belongs to relation, BC belongs to relation, that implies AC belongs to relation. Hence this relation is transitive and we want to show this relation is reflexive, transitive but not symmetric। ऐसा ही हमने किया है। Now go for 14th question। ये आपको खुद करना है। Give an example of a relation which is, जैसा अपना लास्ट एक क्वेश्चन आया भी था 9th, उसमें उसने सेट दे रखा था, यहाँ आपको सेट भी खुद लेना है। Give an example of a relation which is reflexive, symmetric but not transitive। ऐसे हमने किए हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशंस के जैसे अभी अपने पास एग्जांपल एक तो यही हो गया, सेकंड पार्ट का रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, अभी प्रूव किया हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ग्रेटर देन और इक्वल टू बी ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो यू कैन मेड अप सच टाइप ऑफ एग्जांपल्स बाय योर ओन। आप बेसिक की वीडियो को बड़े अच्छे से देखें, फिर एक्सरसाइज की वीडियो को देखें तो आप आराम से एग्जांपल्स बना पाएंगे, right? So this is all about the exercise 1.1. Thank you.